Hello and welcome. I'm Padmaja Joshi and you're watching the national debate. We are well into election season, and if it is one issue which is likely to define what the election narrative is going to be ahead of 2024, it is the Uniform Civil Code. And it has been pitched as the one issue that will ensure equality for all, for men and women, for all religions in the truest sense, for all citizens of India as enshrined in our constitution. The parliamentary panel has summoned the Law Commission over Uniform Civil Code, a move that is being seen as fast tracking the process. The NDA Sarkar has vowed to usher in One India, One Law before 2024. The Prime Minister also backed the UCC, calling it a dream of our founding fathers. Remember, Article 44 in our Constitution clearly states that the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. But what does the UCC really mean in the midst of political rhetoric and vested interests? Many have lost track of the basic facts. Let's remind you why Muslim women today are pleading for their rights. Under existing laws, girls can only be married off after adulthood, but Muslim girls can be married off after puberty. Also, polygamy is punishable by law for all religions except for Muslims. Maintenance laws are also skewed against Muslim women who are only entitled to it for a specified period, not for a lifetime. So the issue itself is not religion specific or about any one community. It ultimately boils down, and it also will be an acid test for those who say that they speak for human rights and they speak for women's rights. Then why is there still resistance? Is it only political in nature? Let me go across to our panel now on the national debate. Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP, lawyer and petitioner Ashwini Upadhyay, also joining us here in the studio, lawyer Subuhi Khan here with us, Mr. Feroz Bakht Ahmed, former Vice Chancellor of the Maulana Azad University. We have Rajkumar Bhati, spokesperson for the Samajwadi Party. Haziq Khan, Islamic scholar, is joining us in the studio. And we also have with us leader of the Congress, Lokesh Jindal. Let me start with you, Shehzad Poonawalla, because I think the main trust deficit starts from the point where suddenly UCC becomes a hot button topic 7 months before elections. This has been an ongoing demand. Muslim women have in fact carried out, the Muslim Mahila Andolan carried out a survey about a year ago where they said they wanted codification of Muslim laws. Nobody spoke at that time. Why now? Look, today I think the discussion should either be that either we are 65, 70 years too late, or either the discussion should be that why now? Because you can't have it both ways. This is not a political issue. As you rightly said, it is a gender issue. It is an issue about 70 crore citizens of this country securing for themselves equal rights as has been enshrined in the constitution of this country. I just have 3 or 4 questions to ask about the naysayers. When it was put in Article 44 in the constitution, the BJP wasn't around. It was put by the founders of our constituent assembly, the members of the constituent assembly, many of whom were congressmen. So was it communal back then? Then how is it communal today? It was implemented in Goa and the Congress party carried on with it. Was it communal in Goa? How is it communal today? The Supreme Court, interestingly, the current Chief Justice's father, who was also a Chief Justice, said that it should not remain a dead letter. Was he alluding to stoking communalism by pushing for UCC? Justice Pratibha Rani of the Delhi High Court, the Supreme Court in 2015, 2019, multiple occasions has backed this idea. Today, all we are saying is that the Law Commission has asked for a consultation to take place. I believe 9 lakh petitions, including Ashwini Upadhyay's, and I'm sure even Feroz Khan has, Bakht Khanji has submitted his submissions there. So I think that what we must look at is the fact that this is a tool for women empowerment, but unfortunately some people who do the politics of BBC, bhadkana, behkana, chillana. This vote bank politics from Shah Banu to Shaira Banu. Forget UCC. Shah Banu order was given by the Supreme Court. We have 2 panelists at least who've opposed it. We have had the Shaira Banu case which has been decided by the Supreme Court on triple talaq. We have 2 people who oppose it. So the fact of the matter is that even if Supreme Court ordains it and passes it and says that a law should come, we have people in the name of vote bank politics opposing it. Incidental. The timing is not consequential. We are already too late. Ambedkar ji back then said that we must have a uniform civil code. So he batted for it. 9 years ago then? No, the question can be that had we done it any time, would it be the right time? For people who are opposing it only for the sake of vote bank politics. My second question in submission is that when we removed Article 370, at that time, it was already long overdue.
Okay. But when we removed it, there was no election, but it was opposed and it was said that why are you removing it now? All right, let me get in Subuhi Khan before I get in the other side. Subuhi Khan, the argument in feminist circles, and I'm quoting from an article, says that women are conveniently being used as a ruse by the BJP to mask their own Hindutva agenda. Every time the BJP goes into an election, suddenly Muslim women become very important to them. Do you really think that UCC and the relation that it is being, the connection is being made with Muslim women's rights is correct? And why? Yeah. Padmja, first of all, I would like to reiterate, as rightly mentioned by Shehzad and also you, that it is neither a subject matter of Hindutva nor it is a subject matter of BJP. It is mentioned in Article 44 that it is duty of the state to ensure that the citizens of India get a uniform civil code throughout the territory of India. Article 37 says that directive principles of state policies are not enforceable by any court of law. यानी कोई भी कचहरी नहीं ला सकती यूनिफॉर्म सिविल कोड. दैट मीन्स ओनली एन इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन गिव दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड टू द citizens of India. So let's make it very clear that it is not a matter of BJP. This is a question which has been pending since decades. Let me give you a few examples. Some so-called pseudo-feminists are saying that why are you bringing Muslim women here? I am a Muslim woman, and fortunately I'm a lawyer also. Many Muslim women come to me and their not just rights but so many crimes are being committed to them in the garb of personal laws. Let me give you a few examples. We have a POCSO Act wherein sexual abuse of a child or a minor is considered as a serious offense, and not just sexual commitment of an offense but also encouragement and abetment of sexual abuse to a minor is considered a serious offense. But Muslim women, Muslim girls, child, they say that she attains the age of marriage once she attains the age of puberty. That means you can marry even a 12-year-old, 9-year-old if her period start. These days, due to climatic change, due to hormonal changes, periods, even a very, very young girl, start having her period. So this age of marriage equal to age of puberty is nonsense which is happening in Muslim community these days, and they are violating POCSO Act, a serial sexual offences act passed by the parliament of our country. And not just marriage but rapes are also happening under the garb of personal laws. We went to Hyderabad and we got to know that 70-80-year-old sheikhs from Arab come and marry 12-year-old, 10-year-old, 11-year-old Muslim girl in the name of Misyar Nikah. Misyar Nikah is traveler's marriage. If a Muslim male is traveling, he can marry any woman or even a girl, minor of his choice, and he can do whatever he wants to do with the girl. When the yatra ends, the traveling, the trip ends, the marriage also ends. The girl does not have any maintenance rights, no divorce, even the right to ask for divorce, no closure, nothing, no alimony, nothing. So they are sexually abusing Muslim minor girls in the garb of personal laws. This cannot be allowed in any democratic land. How this has been happening in India, I'm just wondering. And these people have the audacity, even the feminists, so-called feminists, they have the audacity to refuse and stand against uniform civil code, and they talk about women rights. I am ashamed. रिस्पॉन्ड राजकुमार भाटी जी, आप कहते हैं कि जो सबसे दबे कुचले तबका है सोसाइटी का उसकी बात की जाए तो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, उनके हक की आवाज तो आपको सबसे प्रबल तरीके से उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, कोडिफिकेशन कीजिए आप. और सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करने की जगह यहां कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लिया जाए, यानी कि जितनी एबरेशंस हैं, पर्सनल लॉज हैं, भले से ही वो आपके ट्राइबल्स के लिए हो, जैन्स के लिए हो, क्रिश्चियंस के लिए हो, हिंदूज के लिए हो, सबको कोडिफाई किया जाएगा, सबको यूनिफॉर्म किया जाएगा. नहीं, जो आपने कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं. और जो सुबही जी ने जो अभी समस्याएं बताई हैं, जिस तरह का बताया कि छोटी बच्चियों के साथ शादी होती है, शेख आके कर देते हैं और उनके लिए उचित कानून नहीं है, मैं उससे भी सहमत हूँ. बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कोई भी अन्याय न धर्म के नाम पर न परंपराओं के नाम पर नहीं होना चाहिए. मोटे तौर पर मैंने 2-3 दिन से मैं इस पर डिबेट चल रही है, मैं हर चैनल पे बोल कर आया हूँ. मोटे तौर पर हम इससे भी सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो. समाजवादी पार्टी इन प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहमति में है. पूरी बात कह रहा हूँ जी, ठीक है. नहीं, समानता की बात कोई भी करे उसका स्वागत होना चाहिए. और समाजवादी पार्टी से मैं आता हूँ. समाजवाद का तो मतलब ही है, समाजवाद का अर्थ ही है कि हर तरह की गैर बराबरी दूर करना. गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए.
लेकिन समस्याएं और भी हैं। पहली बात तो ये, इस पे जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, हम असली विचार तो तब रख पाएंगे, असली आपत्ति अपनी तब दर्ज करा पाएंगे जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा कि कौन कौन से कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या क्या बदलना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर हमें, जब हम डिबेट कर रहे हैं चैनलों पर, आपको खास तौर से, क्योंकि आप एक जागरूक पत्रकार हैं, सजग पत्रकार हैं, इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी मोदी जी की सरकार या मोदी जी कोई ऐलान करते हैं, कोई निर्णय या कोई नई स्कीम लेकर आना चाहते हैं, तो इस देश के माइनॉरिटीज़ में, इस देश के अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में, कमजोर वर्गों में संदेह क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि एमआईएम जैसी पार्टियां कहती हैं कि तूफान आ जाएगा। आपको पूरा समय मिलेगा, आपको जवाब देने का बहुत विस्तार से मिलेगा। सर, संदेह आप सम्मानित व्यक्ति हैं। संदेह आप पैदा करते हैं तो नहीं, संदेह होगा ही हम ना। नहीं पैदा करते। देखिए सुनिए, आप एक सज्जन पुरुष हैं गलत पार्टी में, आप उनको समझाइए कि इसको पूरा सपोर्ट करें, मोदी जी के कृपया हाथ मेरा मजबूत नंबर पर करें। मेरी बात पूरी हो जाए, फिर चलिए, आप चलिए। कहना, आपकी बात तसल्ली से सुनूंगा। बताइए। ये चारों तरफ से, ऐसा नहीं है केवल मुस्लिम तरफ से उठ रहा है, आदिवासियों ने भी विरोध किया है, अकाली दल ने भी विरोध कर दिया है, सिख कम्युनिटी को भी संदेह है, जैन बौद्ध को भी संदेह है, बौद्ध जैनों ने तो अभी कुछ नहीं कहा, बौद्धों की तरफ से भी विरोध आया है। तो ये कारण ये है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो ये सरकार, वर्तमान सरकार है, ये कहती तो कुछ है लेकिन इनकी नीयत कुछ और होती है। ये समानता नहीं चाहते। संविधान तो हमारा समान शिक्षा की बात भी करता है। अगर आप समानता चाहते हैं, यूनिफॉर्म चाहते हैं, तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की बात भी करता है, यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम की बात भी करता है। इस देश में तो आप इतना भेदभाव करते हैं कि एक तरफ तो आप कांवड़ियों के ऊपर आईपीएस अधिकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, और दूसरी तरफ एक दरोगा जो नमाज पढ़ते हुए लोगों को मुकदमा लिख के उन्हें बंद कर देता है। सर, अभी इस तो मुद्दे इन पर रहते हैं। भेदभावों पर भी बात होनी चाहिए। चलिए, आप सब और आखिर बात कहते हो, हिंदुओं के बीच कितनी असमानताएं हैं। इस आपने भी, आप पढ़ती होंगी, खबर देखती होंगी, न्यूज देखती होंगी कि हर महीने में एक आध खबर ऐसी आ जाती है कि दलित ने मूछ रख ली, उसकी पिटाई कर दी, दलित घोड़े पे बैठ गया, उसको जान से मार दिया, उसके लिए दलित SC मंदिर में एक्ट है घुस सर। गया, उसका उत्पीड़न किया। उसके लिए तो एक्ट है ना, दलित SC दूल्हे एक्ट है, की- लोग जेल जाते हैं। अरे मेरा पूरा वाक्य तो सुन लिया करो, आप इतने उतावले क्यों रहते हैं जवाब क्योंकि देने के सर, आप लिए? उस चीज की जवाब तो वैसे तुलना- शहजाद भाई की तरफ से आया तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप तुलना जो है नहीं, आप दो पूरा बहुत वाक्य नहीं अलग-अलग सुना आपने। चीजों की कर रहे पूरा हैं। वाक्य नहीं सुना। हम सब यहाँ सही जब जवाब किसी देने के दूल्हे लिए को पार्टी घोड़े में पर नहीं बैठना दिया जाता है, जेल में जब डालिए। किसी दलित की मूछ रखने पे पीटा जाता है, जेल में डालिए। जब किसी को छुआछूत किया जाता है, जेल में क्या डालिए। एक बार भी मोदी जी बोले हैं या भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन चलाया? सर, दरोगा बोलता है, मोदी जी क्यों बोले दरोगा बोलेगा, उसको जेल में डालेगा। ना करें। अब हर चीज हथकड़ी लगाने मोदी जी थोड़ी कॉमन ना सिविल आएंगे। कोड की तो चिंता है मोदी जी को, क्योंकि सर, वो दलितों के साथ पार्लियामेंट अत्याचार में हो रहे हैं, बनेगा, चिंता नहीं है। उस पे मोदी जी बोलेंगे। आखिरी बात, आप आखिरी बात, गोवा में ये कानून है कि अगर हिंदू महिला को 25 साल की आयु तक बेटा ना हो तो उसके पति को हक है वो दूसरी शादी कर सकता है। उसको इजाजत लेनी पड़ेगी इसके इस लिए तरह अपनी के पहली विरोधाभास भी तो हैं। चलिए, अब इसका जवाब अश्विनी जी तो देंगे, क्या पर उससे पहले मोदी जी गोवा के हिंदुओं का अधिकार छीनेंगे या बाकी हिंदुओं को भी ठीक अधिकार है, देंगे? इससे पहले कि आप जवाब दें, आप जवाब ये दीजिए कि हर चीज में संदेह क्यों होता है? नियत ही खराब है, कहने राजकुमार भाटी। इसीलिए सिर्फ मुसलमान भाई ही नहीं, सिख भाई हो, बौद्ध भाई हो, सबको तकलीफ है, ट्राइबल्स। Okay, Padmaja, you very rightly mentioned in your introduction that this is UCCs has nothing to do with politics, it has nothing to do with religion, it has nothing to do with targeting of Muslims, as many people believe on my left hand side. Actually, I should have been on right hand side, not this side. Anyway, having said that, So you're a centrist, so we've kept you between all of them. thank you. Just like thank me, you. I'm also a centrist. Okay, thank you for giving me this respect and regard. Anyway, let me come to the topic. You see, the most important thing about UCC is gender justice and gender equality. Subbu is standing here, you are also there. Not only Muslim women, women from Christian religion, women from Parsi community, and women from almost every other community, they are suppressed, they are harried, they are harassed, and unless these laws are there. Take for example, she told us about misyar marriage. Very unfortunate. As far as Islam is concerned, it has given lot many rights to the woman, and Islam says that under the foot soles or under the feet of a woman, lies Jannat, that is paradise. So Muslim women, apart from all the other women, they suffer mostly. It has nothing to do. It is not going to impinge on Islam's or any other religion's basic principles, basic tenets. It has actually
to ameliorate the sad status of women in all religions, and Muslim women, I can say, they suffer the most. Thanks to this government that this talaq-e-bidat has gone, and talaq-e-hasan remains, and she is there, Subuhi. See the case of this Benazir Hina. She was given talaq, by her husband's friend, and that too through a letter. I mean, all these things must stop. You phone and you say, now you are not my wife. But has there been enough consultation, is what he's saying? क्या काफी चर्चा की गई है? This is law commission has, even I have given my consultation. They have sent a letter that there's an application you can open. I think around 9-10 lakh people have already given their consent. What is your petition? Am I right, Shehzad? What is the submissions that you have made vis-a-vis The UCC? submissions which I have made are that it has nothing to do with the basic tenets of Islam, as my friend would be saying that Islam is being targeted. No religion will be targeted, and Muslim women should get their right. They should not be suppressed. They should not suffer in any case. So Muslim women suffering will be addressed. What about the suffering of women in Goa? Because the Goa UCC is quoted again and again, Mr. Upadhyay. नहीं, देखिए पद्मजा जी, ये मुझे लगता है कि तर्क कम हो रहा है, कुतर्क ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यूसीसी का विरोध करने के लिए तर्क नहीं, इसलिए कुतर्क किया जा रहा है। पहली बात तो भारत में संविधान है, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बिलीफ नहीं चलेगी। अगर मेरी बिलीफ है कि जो अगर मेरे रिलीजन को नहीं मानते, मैं उनको मर्डर कर सकता हूं, तो क्या वो मुझे अधिकार है? नहीं है। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान सच बोलने का अधिकार देता है, झूठ बोलने का नहीं। संविधान प्रेम करने का अधिकार देता है, हत्या करने का नहीं। और जो बार बार अपना अपना बता रहे शरिया, ये बताइए किसी बिजली की चोरी करने वाले को हम बिजली का झटका देकर मार सकते हैं क्या? जिसने साक्षी और श्रद्धा का मर्डर किया चाकुओं से, क्या उसको चाकुओं से गोद के मार सकते हैं क्या? नहीं। कोई आदमी अगर कोयला चुरा रहा हो तो क्या उसको कोयला की भट्टी में डाल सकते हैं क्या? नहीं। क्या कोई आदमी हाथ से किसी का पॉकेट मारी करे या आपके चेन स्नैचिंग करे, मोबाइल स्नैचिंग, क्या उसका हाथ काट सकते हैं क्या? नहीं। अरे यहां तो कानून ऐसा है कि बिट्टा कराटे और यासिन मलिक जिसने पब्लिकली बोला मैंने मारा है, आज तक उसको नहीं गोली मारी गई, क्योंकि कानून है, चल रहा है। अब मैं आता हूं विषय पे। ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है कि हम एचयूएफ की बात करें। ये सिंपल सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसमें केवल सिविल राइट की बात होगी। संविधान में जस्टिस की जो बात हुई, ये 3 तरीके की जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात भी नहीं कर सकते, महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं कर सकते कि एचयूएफ कहां लागू होगा, कहां नहीं लागू होगा। सोशल जस्टिस का मतलब सिविल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या गोवा भी इंक्लूडेड होगा? यस, हर जगह पूरे देश में जब वन नेशन वन सिविल लॉ आएगा तो सब जगह होगा। और जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है पद्मजा जी, मैं आपको एक मिनट के अंदर बताता हूं। मैंने कहा कि आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मत शब्द यूज करिए, क्योंकि बड़ा डिस्प्यूटेड हो गया। इसका नाम आप इंडियन सिविल कोड करिए, भारतीय नागरिक संहिता। इंडियन सिविल कोड में आप 10 चैप्टर डाल दीजिए। चैप्टर नंबर एज ऑफ मैरिज, सबके शादी की उम्र 18 करना, 18 करिए, 19 करिए, लेकिन सबकी एक बराबर कर दीजिए। चैप्टर नंबर 2 प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबके लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दीजिए। चैप्टर नंबर 3 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। अब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सबकी, यानी कि हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, सबके लिए। अच्छा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स में क्या हो रहा है? कुछ लोग कोढ़ होने पे तलाक दे सकते हैं, कुछ लोग नपुंसकता के आधार पर तलाक दे सकते हैं, कुछ लोग बाजपन के आधार पर तलाक दे सकते हैं। अरे भैया, जो भी ग्राउंड है वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, अलग अलग क्यों चल रहा है? इसी तरीके से जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है, ये भी अलग अलग चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है कि कोर्ट जाना है, कोर्ट से ही होगा, फैमिली कोर्ट से नहीं होगा। लेकिन आज भी ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद 4 तरीके के तलाक, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये चारों चल रहे हैं। ईमेल से हो रहे हैं, कुरियर से हो रहे हैं, स्पीड पोस्ट से हो रहे हैं, एसएमएस से हो रहे हैं, व्हाट्सएप से हो रहे हैं। और 8 महिलाएं इन चारों तरीके के तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई हैं। और एक का एग्जांपल बताता हूं, कलबुर्गी से आई है, वो गायनोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस एमएस है, उसके हस्बैंड एमबीबीएस एमडी है, डॉक्टर है, उसके सास ससुर डॉक्टर हैं, घर में नर्सिंग होम है, उसको तलाके किनाया दे दिया। तलाके किनाया का मतलब जा मैंने तुझे आजाद किया, जा मैंने तुझे आजाद किया, जा मैंने तुझे आजाद किया। ये तलाक चल रहा है भारत के अंदर। पढ़ा लिखा सास ससुर डॉक्टर, खुद डॉक्टर, हस्बैंड डॉक्टर, ये तलाक हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, बेनजीर हिना जर्नलिस्ट है, आप किसी फिल्म सिटी में रहती है, किसी और चैनल में काम करती है, इंग्लिश चैनल में ही काम करती है, उसका हस्बैंड हाईकोर्ट में एडवोकेट है। वहीं हाईकोर्ट के पोस्ट ऑफिस से एक चिट्ठी भेज दिया, मैंने तुम्हें तलाक हसन दिया। अगली चिट्ठी बोला तलाक हसन दिया।
अगली चिट्ठी भेजा, तलाक हसन दिया, उसके बाद उसको पेटीएम पे 15,000 रुपए भेज दिया, बोला तुम्हारे एक बार बात प्लीज, दोस्त ने साइन किया। हाँ, उसके बाद उसने पेटीएम पे 15,000 रुपए भेजा, बोला तुम्हारा तलाक हसन हो, ये तुम्हारा मेहर की रकम है। फिर 2,000 रुपए भेजा, उसका 1 साल का बच्चा अली नाम है, बोला ये अली का दूध पीने का है, 17,000 रुपए में तलाक हसन हो गया। और सबसे आश्चर्य बात, उन तीनों चिट्ठियों पे, बिल्कुल फिरोज जी ठीक कर रहे हैं, उन तीनों चिट्ठियों पे उसके साइन नहीं, हस्बैंड के, उसने एक एडवोकेट के साइन करवाए, उस पर भेजा, मतलब शौहर का साइन में नहीं है। एक मिनट बात कंप्लीट कर रहा हूं, तलाक हो गया। तो मैंने कहा कॉमन सिविल कोड में, भाई बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको दो ना। ऐसा क्यों हो जाएगा कि हिंदू के अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो महिला गोद ले सकती है, हमारी मुस्लिम बेटी को अगर बच्चा ना हो तो गोद नहीं ले सकती? मतलब वहां सौतन आ जाए ठीक है, और गोद लेने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? विरासत का इक्वल राइट सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए? वसीयत का इक्वल राइट सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? हम दो हमारे दो सबके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? अब मैं आपको सवाल माता पिता पूछूंगी, के भरण पोषण का अधिकार सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इनहेरिटेंस राइट्स हिंदू लड़कियों को भी हाल तक नहीं मिलते थे इक्वली, तब किसी को परेशानी नहीं हो रही थी। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के इनहेरिटेंस की क्यों परेशानी है? केवल मुस्लिम की नहीं है, ये तो सिंपल सा एक इंडियन सिविल कोड, जिसको मैं इंडियन सिविल कोड कहता हूं, कुछ लोग उसको यूसीसी कहते हैं। मैं कह रहा हूं जैसे एक आईपीसी है, पूरे देश में लागू है एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल एरिया में आईपीसी नहीं लागू है। तो हम कह रहे हैं जहां जहां आईपीसी लागू है वहां वहां आईसीसी लागू कर दो, और जब जहां ट्राइबल एरिया में आईपीसी हो जाएगी तो वहां आईसीसी भी हो जाएगी। ठीक है, लोकेश जिंदल में दो कानून नहीं चल सकते, लोकेश जिंदल होना चाहिए। लोकेश जिंदल, हाजिक खान, both have been waiting. Lokesh Jindal, you heard these n number of examples. The funny thing is that even those people who speak for rights so far have largely two arguments that I have culled so far. One, what about Hindus? The second, these laws may exist but hota nahi hai. Nobody actually uses these discriminatory laws. What the examples you've heard so far goes to show that yes, discriminatory laws are being misused. So shouldn't you speak against it? The Samajwadi Party in principle is saying, yes, we are against discrimination. What is stopping the Congress? Yes. Look, it was the Constituent Assembly which had inserted Article 44, and it clearly stated that it is to be one of the objectives to be achieved by the state. But when we talk about social reforms, social mobilization and social legislations, both are two instruments which give effect to social reforms. Now, Mr. Upadhyay was talking about an Indian civil code. Now, sir, please tell me, what about the matrilineal societies in Garo, Khasi, as well as in Kerala? There are customary marriages that take place in Uttarakhand. And so when I'm talking about India as a diverse region with different demography, which different sex ratio, illiteracy, economic status, migration pattern. So there are various aspects which are to be considered while legislating any law. Okay, since you've raised a legal point, I think this requires a quick rebuttal from Mr. Upadhyay and Subuhi Khan. Quick legal rebuttal. Yes, 145 करोड़ की पॉपुलेशन में 144 करोड़ लोगों के ऊपर इंडियन पिनल कोड लागू होता है। केवल मुश्किल से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इंडियन पिनल कोड नहीं लागू होता, कस्टमरी लागू होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, उन 50 लाख लोगों के ऊपर फर्स्ट फेज में अगर इंडियन सिविल कोड लागू नहीं भी होगा या यूसीसी नहीं भी लागू होगा, तो कम से कम 144 करोड़ 50 लाख लोगों पे तो लागू होगा। अरे भैया 0.5% ऐसे लोग हैं उनके ऊपर इंडियन सिविल कोड, उनके ऊपर इंडियन पिनल कोड भी नहीं लगता। Okay, yes. Sir, criminal cases and civil cases are very different domains altogether. Okay, you have asked about why the exemption given to tribal societies, matrilineal societies. First of all, Padmaja, let me understand that nobody's customs are going to be done away with. But those customs which are in conflict with the constitution, lot of them have been done away with. For instance, sati was a practice. Hindu laws have been reformed in the 1950s. The fact is that this is not about standardization of customs. This is about standardization of the outcomes when a certain kind of situation develops, for instance, on divorce or on whether women and men should have the same rights to inheritance. Lokesh ji, we are having a civil debate. At least this debate can be civil. No, I'll finish my point, then you speak. Sir, let me complete. Padmaja, it'll just waste time. Small rebuttal because we didn't my have last time, yes. rebuttal. Bharti ji just now said कि when a draft comes, we'll be able to give a more informed opinion. I agree with him. वैसे Bharti ji,
यूसीसी का विरोध तो एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने किया, पर जब ड्राफ्ट आया नहीं था तो एनआरसी का विरोध कैसे हो गया था? Okay, we don't want to go एनआरसी का down. तो ड्राफ्ट आया Okay, we नहीं। don't want पद्मजा to. जी, रिमाइंड मी, डिड यू सी एनआरसी ड्राफ्ट इन Okay, योर we- एंटायर लाइफ? एनआरसी का ड्राफ्ट, Okay, we will not go down that road. We will not go down that विरोध road. कर दिया। Lokesh Jindal, finish your point. Lokesh Jindal, आई finish your वांट टू point. शो विरोध के लिए विरोध है, नहीं, अभी विरोध के लिए विरोध। भारती जी स्माइलिंग व्हिच ही इज अंडरस्टूड। Okay. Sir, when I'm talking अच्छा, एक सेकंड, लोकेश जिंदल, let's stick to यूनिफॉर्म सिविल कोड. अभी एनआरसी बहुत दूर की बात है। हाँ, लोकेश जिंदल. See, when Mr. Shehzad was talking about the Hindu reform, sir, it took more than 100 years for us to gradually come up with a codified Hindu law as well as do away with all forms of evil practices. So are right from Muslims radicals 1829 when backwards? Are you abolition saying of this? sati occurred up till नहीं, मुसलमान 100 next साल Losi पीछे हमसे। Act, followed by widow remarriage what was act, your हाजिक साहब, ये सुन रहे हैं आप? Consent Act, Congress followed was a by weak-willed all these forms government, of weak-kneed reforms, they government, underwent which could a not do it gradual for the last process of 75 social years. mobilization, What about following that? which Okay, there okay, let him Modi finish, gave please. us Let him long- finish, please. Then Subuhi, I think, needs to respond, and Haziq Saab is waiting. नहीं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे, उनको बात तो पूरी करने दीजिए. Sir, it's very important to bring into dialogue all civil societies of the Muslims. It's very important that we must. स्टेट शैल, ये स्टेट की ड्यूटी है उसको लागू करे। Sir, if you are going to introduce a social legislation in a draconian manner, it is not going to happen. Okay, gentlemen. There will be no gender justice achieved. अप्रिशिएट नहीं करें तो कम से कम इतना परेशान तो ना करें। Okay, gentlemen, he's not in the studio here with us, so his voice will be completely drowned out. Let's give him his full time, and then Subuhi Khan will respond. Yes. I just want to make my final submission, Padmaja, that if social legislation in the form of uniform civil code is brought in without involving civil societies, it is going to be a draconian law and it will fail to achieve the purpose. It will only and How- only politicize the entire society. What is your idea of involving civil society? Is doing that. What is Yes, your idea all- of involving yes, civil sir, society? yes. All stakeholders, the tribal groups, the tribal councils, the ulemas, the Have you given women's, your suggestion the all to the groups law who are commission? involved. But isn't They must be that brought what in law some commission is form. doing? Unless No, law commission, the suggestions that law commission is bringing in, please sir, let me complete. Sir, let Okay, me I have to complete. say it's Let very me interesting that when I asked Mr. Lokesh Jindal what is the idea of consultation, he said tribals, he said Muslim groups, ulemas. You didn't think of Muslim women and their stakeholders. You don't want Muslim women to be In the consulting. Muslim groups, there are Muslim women also involved. Muslim women are in Muslim groups. Sir, very humbly, All India Muslim Personal Law Board में कितनी औरतें हैं जो आप कह रहे हैं Muslim women are included in Muslim groups? How many women are there in All India Muslim Personal Law Board or the Jamiyat? Anyway, let's leave that aside. Let's form Subuhi- civil societies. Let's give them a platform Okay, so that they can raise their matters and bring it to the national Okay, sir. discussion. Lokesh Jindal, first of all, okay, You have hold not on. done it for the last 75 years. That's why you are not on the platform. You Okay, are gone. hold on a second. You know, when we are talking about, when we are talking, सेविका समिति है। okay, when we are talking, एक second, Haziq Saab, एक second. When we are, एक second, let's not descend into this. When we are talking about consultation, we cannot have a consultation at Jantar Mantar. There is a legal process where the report will be there. There will be a draft. All of the consultation will be put out in black and white. Subuhi Khan, my question to you is slightly different. You know, over time, there have been arguments made, and let me quote a few of those arguments to you. There are existing laws which women can already make use of for the purposes of divorce, etc. For decades, feminist legal practice has, on the behalf of countless Muslim women, successfully used Protection of Women from Domestic Violence Act, which is available to all Indian citizens regardless of religious identity, as well as the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 to deal with polygamy and triple talaq. Existing laws are enough is the argument. Why do you need UCC? Padmaja, you asked a very good question and a very hard-hitting question. This has always been my argument. I always say that Muslim women, are they not equal citizens of India? Are they not daughters of India? They are not able to use the protection of the existing laws. I gave you an example of POCSO Act. पॉक्सो एक्ट में 10-10 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी भी मिलती है, लेकिन मुसलमान बच्ची के साथ 9 साल की 10 साल की
12 साल की उम्र में निकाह हो जाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी शरिया अलाउ करती है, तो उनकी एज ऑफ मैरिज हो गई है। कहां उनको पॉक्सो एक्ट का प्रोटेक्शन मिल रहा है? आईपीसी में 494 बाइगेमी पॉलीगेमी प्रोहिबिट करता है। कोई हिंदू पुरुष अगर एक जीवित पति पत्नी होते हुए कोई दूसरी शादी कर लेता है तो 7 साल तक की सजा है। कितने मुसलमान पुरुषों को 494 आईपीसी में सजा मिलती है भाई? किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि उनको शरिया अलाउ करता है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। किसी भी महिला के साथ फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक अब्यूज आप करते हैं तो क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। लेकिन कितनी मुसलमान महिलाओं को जो है अधिकार मिलता है और संरक्षण मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का? उनके साथ पहले ट्रिपल तलाक होता था। फॉर्चुनेटली भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, तो अभी तलाक हसन, तलाक एहसन और अभी जो अश्वनी भाई ने बाइन और पता नहीं क्या क्या नाम किनाया, उन नामों से उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल वन साइडेड डिवोर्स मिल रहे हैं, जिसमें औरत की कंसेंट भी मायने नहीं करती, औरत की मर्जी भी मायने नहीं रखती, वन साइडेड डिवोर्स दिए जा रहे हैं। कहां उनको, एक सेकंड फिरोज भाई एग्जांपल्स पूरे प्लीज करने दीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोटेक्शन मुसलमान महिला को नहीं मिलता है। और एक बहुत घटिया एग्जांपल देती हूं पद्मजा, यू एज अ वुमन वुड बी अशेम्ड एंड शॉक्ड टू नो, एज पर शरिया लॉ अ मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं है मां। अगर इन केस पति का इंतकाल हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो ससुराल वाले बच्चा छीन के लात मार के बाहर निकालते हैं उस औरत को कि या तो दादा उसके गार्जियन है या फिर चाचा ताऊ, कोई भी ददिहाल का उसका गार्जियन है। इस तरह के अपराध आप एक मुसलमान महिला के साथ कर रहे हैं और यहाँ पर बैठ के लोग अपनी राजनीति करते हैं। साहिबा, these personal laws have made India divided house. जैसे majority minority है, उसी तरह से this has made India a very very terrible thing. Personal laws should be banned. UCC should run the country because it is not the law of Sharia or Sanatan which will run India. It is basically today B.R. Ambedkar's law, and now it should be UCC which will not impinge upon Muslim, Christianity or any other. Okay, let me get in Haziq Khan now. आपने ये सारे जितने भी वाक्य हैं सारे सुन लिए। सिंपल से इतनी सी अर्जी है, और मैं आपको बताती हूं कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने पिछले साल एक राय शुमारी की थी अमंग मुस्लिम वुमेन। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने उसमें अपना ओपिनियन दिया। 91% सेड कि ये जो प्रैक्टिसेस है जो शरिया में अलाउड है, पॉलीगमी है, हलाला है, इनको खत्म किया जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा आप कोडिफाई कीजिए। अब यूसीसी के जरिए यही किया जा रहा है। आपको उनके साथ खड़े होने में क्या रोक रहा है हाजिक साहब? देखिए मैडम, यूसीसी का ना तो अभी तक किसी संगठन ने मुसलमानों के मुखालफत की है, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया था तो उस संविधान की सभा में 300 विद्वान थे दुनिया के, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है यूसीसी की। लेकिन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2016 में 21वां, नहीं सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से यह कहा था कि सबके लिए समान लॉज होनी चाहिए। उस वक्त नेहरू जी ने कहा हुआ था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे देश उसी के ब्याह पे आर्टिकल 44 वो तय हुआ। 1 मिनट, आप अपनी बात कह चुके सर, अपनी बात कह चुके। बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 21वां लॉ कमीशन बनाया। किसने बनाया था? मैंने बनाया था 2016 में, आपने बनाया था, देश के प्रधानमंत्री ने बनाया था। उस लॉ कमीशन ने कहा कि इसमें हमारे मुल्क में ये अनेकता की एकता वाला मुल्क है, इसमें तमाम 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और 75 साल से बड़े प्रेम से ले रहे हैं। यहाँ यूसीसी की जरूरत नहीं है, उसे खत्म करके 22 माह, क्योंकि जिद है हमारे यहाँ कि हमें लागू करनी है, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लागू कर दिया। ये प्रेम, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ 2 तरह का कानून कैसे, धारा 370 कश्मीर में खत्म, तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों धारा है? हमें कहते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में प्रॉपर्टी क्यों नहीं खत्म कर सकते? अभी भाटी जी ने कहा कि आप जो कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड नहीं है, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है इसमें मुस्लिम शरिया के एतबार से 5 पॉइंट है, उसकी भी मांग करो, जो तलाक का है मांग करो। लेकिन बाद में आप अपनी बात कैसे चिल्लाते रहो? One at a time. Let's not all. Okay, let's not all heckle him. Let me ask a specific question. पहले चीज आपने बोली कि हमारे संविधान जो लोग बना रहे थे उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं। ये बात सच नहीं है। उस वक्त सबने बोला कि इसकी जरूरत है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखा गया। एक सेकंड सर, बात तो पूरी कर लूं। दूसरी बात ये कहा गया कि अभी तैयार नहीं है, आगे किया जाएगा। उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए ना।
तीसरी बात आपने जो ये सबसे दिलचस्प बात बोली, सब कुछ प्यार से चल रहा है। औरत को घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी राइट्स उसको मिल नहीं रहे, बच्चा उससे छीन लिया, आपके लिए सब प्यार से चल रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उस महिला के लिए भी प्यार से चल रहा है। बहनें बैठी हैं हमारी तलाक के लिए, 3% है मुसलमान जिस तलाक पर ये चिल्ला रहे हैं, 27% हिंदू बहनें बैठी हैं हमारी तलाक के लिए। हमारे देश में दो तरह का कानून चलेगा, कानून जैसे अगर चाह रहे हो एक तरह का कानून है तो सारे 145 करोड़ लोगों के लिए होगा, ऐसा नहीं है। अभी भाटी जी कह रहे थे कि नमाज पढ़ते में दरोगा से गिरफ्तार कर लेगा और चीफ मिनिस्टर उसके लिए फूल रोक रहा है, वो अपने घर में पड़ रहा है। दोनों हाजिक साहब यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैडम आप मेरी बारी में बोले तब मैंने इतनी बात कही। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, फिरोज साहब एक सेकंड, वन एट अ टाइम। नाउ यू स्पीक। लेट मी मेक 3 वेरी क्विक पॉइंट्स। पहली, और प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, 30 सेकंड में खत्म करूंगा। पहले आपने कहा कि किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध नहीं किया, ये गलत है। जमीयत उलेमा हिंद मौलाना अशरफ मदनी ने इसको मुस्लिम विरोधी कहा है, अमानतुल्लाह खान ने भी कहा है। दूसरी बात, मैं 2 सवाल में इसको समाप्त करता हूं। पहला, हाजिक खान साहब, इस देश में अगर सही समय आज नहीं है, शरिया के हिसाब से तो क्रिमिनल कोड भी तो अलग अलग होना चाहिए। कॉमन क्रिमिनल कोड है, हाथ काटने पर हाजिक और अश्विनी की अलग अलग सजा नहीं है। और दूसरा सवाल, इस पूरे पैनल में एक एक करके पूछ लीजिए, शुड चाइल्ड मैरिज बी अलाउड एंड शुड गर्ल्स एंड बॉयज गेट इक्वल राइट्स? स्टार्ट फ्रॉम सुबोही, अश्विनी, मी एंड आस्क देम, should child marriage be allowed in 21st century India? इस्लाम ने बलागत के बाद कहा, इस्लाम के अंदर। और आप इनको जवाब देने दीजिए, फिर भाटी साहब। सबसे ज्यादा हो रही है चाइल्ड मैरिज। रेशो निकालिए रेशो, आप बताइए रेशो से निकाल। Hindu is not defending. Padmaja, are you defending child marriage? No. आप बोलो। कोई नहीं बताओ, हम विरोध करते हैं। इस्लाम में एक सेकंड, हाजिक साहब, one distinction needs to be made। जब आप कहते हैं कि अरे हिंदुओं में भी बहुत हो रही है, हाँ हो रही है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, पर कानून है जिससे जो भी हिंदू चाइल्ड मैरिज करता है वो जेल जाएगा। क्या सारे डिस्क्रिमिनेशन के केसेस, कास्ट एट्रॉसिटीज बंद हो गई हैं? नहीं, पर लॉ है जिसके तहत वो जेल जाएगा। वैसे ही सर, वैसे ही एक आदमी बता दीजिए, अभी चाइल्ड मैरिज का एक सैंपल बताइए, एक सैंपल बताइए, नाम से बताइए, ऐसे नहीं। इसीलिए हाजिक साहब, इसीलिए आदमी की 4 बीवी हैं, एक आदमी ने 4 ओके, वन एट अ टाइम। फिरोज साहब एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, आई थिंक भाटी साहब नीड्स टू स्पीक ना, भाटी साहब नीड्स टू स्पीक। तीसरी चीज जो आपने बोली, क्या एंटी ट्रिपल तलाक लॉ आने के बाद ट्रिपल तलाक बंद हो गया है? नहीं, पर उसके लिए अब एक कानून है कि अगर कोई ये करेगा तो वो भी जेल जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है सर, फर्क सिर्फ इतना है। 3 तलाक लगातार कहना है, एक ही टाइम में कहने पे बैंड है और किसी दूसरी तलाक पे नहीं। बिल्कुल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे उसी के लिए लॉ है। ठीक, और इन तलाकों पे बैंड कैसे कर देंगे आप? एक सेकंड, अब तक इतनी डिबेट चली है और जो बोले हैं उससे सिद्ध हो गया, जो आमतौर पे विरोधी पक्ष कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर नहीं आना चाह रहे, एंटी मुस्लिम सिविल कोड लेकर। कहीं तक एंटी मुस्लिम नहीं है। आप मैं नहीं कह रहा, साइट मत करिए, भड़काइए। अब एक तो आप, ये बड़ी समस्या है, झटकाइए मत। पदमजा जी, मैं एक भी शब्द किसी के बीच में बोल रहा हूं। भाटी साहब, आपने पूरी रामायण सुनने के बाद अपना ही तर्क दे दिया उसके ऊपर। कृपया ऐसा नहीं, कानून खत्म करो। ये डिबेट का कौन सा तरीका है? या तो हमारे इनको बोलने दीजिए, वरना हम बोलने नहीं देंगे। बोलिए। मैं तो शुरू में कह चुका हूं कि आमतौर पे मैं इसके समर्थन में हूं। मैंने ये भी बात कही है कि जो फिरोज साहब ने और सुबूही बहन ने जो समस्याएं रखी थी, मैं उनसे सहमत हूं। वो गलत है, नहीं होना चाहिए इस देश में, आजाद देश में नहीं होना चाहिए। महिलाओं का उत्पीड़न, बच्चों की शादी और जो तमाम बुराइयां नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये। लेकिन अब तक की डिबेट में जो चला है, केवल ये बताई गई है मुसलमानों में क्या क्या बुराई है, मुसलमानों में, इससे संदेह पैदा होता है। हमें इस बारे में थोड़ा समय में, सबसे कम समय मुझे मिला, थोड़ा सा हमें संयम रखना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में भी बहुत बुराइयां थी। बच्चियों की हत्या कर देते थे, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, बेटियों की शादी आज भी राजस्थान में आंखों तीज पे हजारों बेटियों की गोद में लेकर फेरे डलवा दिए जाते हैं। शायद आपको जानकारी ना हो, 6-6 महीने की बच्चियों की शादी आंखों तीज पे आज भी होती हैं। गलत है वो। सती प्रथा थी, औरतें जिंदी जला दी जाती थी चिता में, जवान औरतें। उनके खिलाफ आवाज कहां से उठी? हिंदू धर्म से उठी, हिंदू समाज से उठी, और धीरे धीरे समाज का मन परिवर्तन हुआ और कानून बने। तभी तो जो फिरोज साहब कह रहे हैं और सुबूही कह रही हैं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। सर एक जवाब दे दूं इसका मैं ना,
जब कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ हुआ था उस वक्त भी कुछ लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पर उस आरएसएस ने वक्त किया था, हिंदू महासभा ने किया था, फिर भी लॉ आया जो ना, आज समानता के फिर भी लॉ आया, फिर भी लॉ नहीं आई, विरोध किया था, फिर भी लॉ आई और आखिरी बात- सबने माना, नहीं, सुनो। सब मानेंगे क्योंकि मानना चाहिए। इक्का दुक्का लोग प्रोटेस्ट करेंगे पर लॉ आनी चाहिए आप सर, क्या और मनवाना सब चाहते हैं मानेंगे। जब अभी आपके पास ड्राफ्ट ही नहीं है? हम मनवाना क्या कुछ नहीं मनवाना चाहते हैं? आपने जो हम बोला तो कह रहे हैं समानता अच्छी बात है, लेके आओ आप। बिल्कुल, पर आपका जो तर्क है कि नीचे से सारा रिफॉर्म आएगा, नहीं, सरकार कानून लाएगी फिर रिफॉर्म होना पड़ेगा। सरकार सर ये बताइए भाटी साहब, आपको एक भाटी साहब एक छोटा सा, अश्विनी जी जवाब देने से पहले एक छोटा सा आपसे सवाल पूछूंगी। यहाँ ये हालत है कि पुलिस वाला नहीं खड़ा रहता, कई सारे लोग तो लाल बत्ती पे भी नहीं रुकते हैं, पर ये बात सच है कि जब वो लाल बत्ती तोड़ेगा तो उसको फाइन जरूर लगेगा और वो जेल भी जा सकता है। समाज और लाल बत्ती दोनों को आप एक जगह नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल, समाज सिपाहियों से नहीं चलता, ठीक है। लाल बत्ती सिपाही से चलती है, समाज समाज परंपराओं से चलता है। ठीक है, आप सही कर रहे हैं। मैं रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। ठीक है, इनको एक छोटा एग्जांपल देने दीजिए, फिर आप जवाब सुनिए, दीजिए। मेरी हाँ। बात सुनिए। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मैं ऐसा है कि उनके लिए 3 आइसक्रीम ले गया, 2 चॉकबार 20-20 रुपए वाली, और एक बेटी के लिए मैं ले गया कैंडी 5 रुपए वाली। उसने कहा भाई ये तो गलत है, मैं क्या कोई किसी से कम हूं? तो वजीर आजम ने सही कहा, अलग अलग कानून सबके लिए नहीं होने चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, सीरियस पॉइंट दैट मिस्टर भाटी has made. भाटी जी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है ये एंटी मुस्लिम है। भाटी जी आपने मैंने नहीं कहा। अरे भाई आप मैंने आप नहीं कहां कहा, अनुराग मैंने भदौरिया कहा की जो लोग संदेह तरह? कर अच्छा, रहे पर हैं, अगर मैं आपकी आप मेरे ऊपर मत अच्छा ठीक है, आपने क्या बोला रिपीट कीजिए, फिर मैं जवाब देता नहीं, हूं। मैंने ये कहा, हाँ, एक मैं मिनट सहमत हूँ, ये जो इन्होंने समस्या उठाई मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन पूरी डिबेट में केवल मुसलमानों पर फोकस कर दिया गया, ठीक है। जिससे उन लोगों का संदेह सही जाहिर होता है इनका जो सवाल संदेह ये- कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रहा संदेह। ठीक है, इनका सवाल जो संदेह एक नहीं सेकंड, एक सेकंड, आई थिंक एक स्पेसिफिक उनका सवाल और उनका एक दर्द ये है कि आप हर बार मुसलमानों में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, तो रेजिस्टेंस बढ़े। ठीक है, अब मैं कैन आई प्लीज मेक माय पॉइंट। स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट भाटी जी सेड अरे मुसलमान छोड़ो, ये देखिए ये तो जैन भी इसका विरोध, बौद्ध भी इसका विरोध कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं। अब उन्हीं की बात पे यू टर्न करते हुए कह रहे नहीं नहीं सब विरोध तो आप कह रहे यू मुस्लिम। देखिए एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिबेट कोड हो जाए। दूसरी बात मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ऐसा है कि अगर ये मुस्लिम विरोध है, ये तो आपने सीए कानून के बारे में बोला था, आज तक किसी मुसलमान का अधिकार भारत के मारा गया सीए से? आपने तब सीए आया, सीए का पेज पर पेज एक मुसलमान का, एक सेकंड सुन लीजिए, एक अधिकार मारा नहीं गया था, पर आपने कहा ये एंटी मुस्लिम है। आज एक सेकंड फिरोज खान प्लीज, फिरोज बाग जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। थर्डली कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून लाने बोला, उसको आपने क्यों विरोध किया? चलिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हम तो मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं बीजेपी के, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बोला, उस पे आप सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, 10 सेकंड में पहले इनको जवाब दीजिए, फिर आपका जवाब लूंगी। शहजाद भाई जान पूछ के बहुत चालाकी के साथ कैसे मेरे नाम से गलत कोट कर रहे हैं। आपसे ज्यादा ना शातिर तो- नहीं है वो। बोलिए भाटी साहब। आप वीसी रहे हैं, आप बहुत चांसलर रहा हूं। चांसलर रहे हैं आप, चलो, लेकिन आप बहुत हल्की टिप्पणी कर देते हैं, ये आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। ये आपकी समझ है। अच्छा ठीक है, बोलिए भाटी तो आप बीच में क्यों टोकते हैं? देखिए उन्होंने गलत कोट मुझे किया है, मैंने ना तो ये कहा कि ये मुस्लिम, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जो लोग संदेह कर रहे हैं उनके लिए ये सिद्ध हो जाएगा। दूसरा बात, इन्होंने कहा 3 तलाक पे मैंने कभी विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, समाजवादी पार्टी ने भी। शफीउर रहमान बर्क ने बहुत। तीसरी बात, शफीउर रहमान बर्क एक व्यक्ति हैं और वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वो सांसद है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सीए ने क्या छीन लिया? सीए छीनने के लिए है ही नहीं, सीए देने के लिए है। अरे पर कौन, लेकिन वो जो देता नहीं वही तो गुमराह करने वाले, जो आप गलत करें। सीए जो देता है मुसलमानों को नहीं देता, बाकी को देता है। अरे अफगानिस्तान के मुसलमानों को क्या जाकर नहीं देना है? देता। अच्छा चलिए, उसमें विरोध था हमारा। चलिए अभी कानून ये भेदभाव करता है। अभी सीए पे नहीं जाते, अभी गलत कोट कर रहे हैं। अभी इसलिए इसी लॉ पे रहते सफाई हैं। आपने अफगानिस्तान के मुसलमानों को नहीं कहा, भारतीय मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आई थिंक मैडम देखिए अगर शरिया पे चलना है तो उस पे फिर 2 राह पे नहीं चलना चाहिए। ब्याज लेना हराम है। भारत में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम भाइयों और बहनों के बैंक अकाउंट हैं जहां उनको ब्याज मिल रहा है,
मुफ्त खोरी हराम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 50 स्कीम और राज्यों की अलग अलग भी लगभग 250 स्कीम, टोटल 300 स्कीम, मुफ्त मकान, मुफ्त वजीफा, मुफ्त राशन, मुफ्त दुकान, मुफ्त चावल, मुफ्त दाल, आयुष्मान कार्ड, ये हाँ मतलब वो सब चलेगा, सब मुफ्त में, जो हराम है वो सब चलेगा। बस महिलाओं को जहां दबाने वाली, जहां महिलाओं को आजादी देने वाली बात है, वहां कहेंगे नहीं हमारा शरिया शरीयत। ठीक है, केवल महिलाओं को, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। also wants to respond. Then Haziq Khan and Lokesh Jindal. Yes. जी पंजा शहजाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पर बोला जिसकी शायद संजीदगी हम लोग समझ नहीं पाए, तो मैं उसको रिआइट्रेट करूंगी दूसरे शब्दों में। देखिए, माइनॉरिटिज्म या अल्पसंख्यकवाद, इस शब्द को टू नेशन थ्योरी को भारत में पनपाने के लिए हमेशा से इस्तेमाल किया गया। BN राव के चेयरमैनशिप में जब वो हिंदू कोड बिल बना, उस समय हिंदू महिलाओं के सक्सेशन, मेंटेनेंस, मैरिज, डिवोर्स, माइनॉरिटी, गार्जियनशिप, अडॉप्शन, सारी चीज को इंक्लूड करके पार्लियामेंट में ले जाया गया। उस वक्त मुसलमानों को उससे अलग रखा गया कि नहीं सिर्फ हिंदुओं के लिए बना दो, सिर्फ हिंदू महिलाओं और बच्चों को जरूरत है सुरक्षा की, मुसलमानों को नहीं है। उस वक्त मुसलमानों को एक सुपीरियरिटी फील करवा के कि नहीं उनकी पर्सनल लॉज को टच मत करो, बाद में देखेंगे। अब 70 साल निकल गए, आज वही अल्पसंख्यकवाद इस्तेमाल करके उस वक्त एज ए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया, आज एज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं जी, मुसलमान विक्टिम हैं जी। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो एनआरसी हो, दुनिया के हर देश में सिटीजनशिप कानून होता है कि भारत का नागरिक बनने के या भारत की नागरिकता हासिल करने के क्या पैरामीटर्स होंगे। किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हर देश में कानून होता है। लेकिन भारत में अगर एनआरसी की बात हो गई तो जी मुसलमान के खिलाफ हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें मुसलमान नाम शब्द भी इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ हिंदू माइनॉरिटीज की सुरक्षा की बात थी। नेबरिंग कंट्रीज में, एक सेकंड, वहां पे भी मुसलमान खतरे में आ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरी दुनिया में किसी कानून ने अपनी बात, जस्ट वन लाइन, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मुसलमान महिला और मुसलमान बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त, उसको भी कह रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ है, क्योंकि इनको इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चलानी है। एक छोटी सी मुसलमान बच्चियों को जरूरत है। एक छोटी सी चीज है, लोकेश जिंदल, एक्चुअली द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वेरी फ्रीक्वेंटली पीपल से दैट minorities are not safe in India. Minority rights, and this is being quoted as another example, an assault. Today morning I was reading an opinion piece which said that every day is a waking hell for Indian Muslims. The latest example is UCC. Now there are several countries, you would agree, which are presumably not waking hell for Muslims. You know, countries in the European Union, countries like America, countries like Australia. Hold on a second. So Australia actually had an ongoing debate about whether the increasing Muslim population should be allowed to practice Sharia. They had a proper debate about it in the highest echelons of power. Here is what some of their officials said. Australia's former treasurer Peter Costello argued there is one law we are all expected to abide by. It is the law enacted by the Parliament under the Australian Constitution. If you can't accept it, then you do not accept the fundamentals of what Australia is and what it stands for. Similarly, the Attorney General then went on to say that we will not consider the introduction of any part of Sharia into the Australian legal system. And these are countries which are upheld as the beacons of democracy and being friendly to their minorities. By the way, they have a much smaller population of Muslims than India does. Lokesh Jindal. Madam, the basis, pretext on which BJP wants to introduce UCC is gender justice and social equality. Okay, fair enough. But look at its election manifesto in Karnataka. It wanted to do away with 4% reservation. The government is applying brakes and accelerator together. If it is really sincere about bringing about reforms, social justice, social equality, gender justice, then it must involve all the Muslim societies, civil societies into, and it must create necessary and sufficient conditions so that such laws can be introduced. Before these conditions, if these laws are introduced, it is going to be draconian and it will be discarded by the society. So hold on a second. Let me ask you a blunt question. We keep saying the condition should be created. What exactly are those conditions? Give me 3 conditions. जब ये हो जाएगा, we are ready. जब ये हो जाएगा, we are ready. जब ये हो जाएगा, we are ready. Give me 3 conditions. Literacy,
a decent standard of living. That is a good profession. They must be in the What is a organized decent sector. standard of living? Majority of the Muslims today, they are in unorganized sector. Their economic condition So is let me not ask you, hold on a second, please. Just a as compared to second. the Gentlemen, others in give the me tribe. 30 seconds. मुसलमानों के हाथ में भीख का प्याला दे Sir, दिया, give me reservation का 30 प्याला दे दिया। seconds, please. We are having a conversation. Okay. So, Lokesh Jindal, at the time that the constitution was formed, we were told that the Muslims are not ready right now. When they will be ready, we will bring in uniform civil code. Let me ask you then that in 70 years, why didn't you create those conditions which would enable Muslims to be treated at par and would give Muslim women the same right? Today it's convenient in 2023 you say, अरे condition ही नहीं हुई, अरे आपने condition बनाई क्यों नहीं साहब? Literacy, right? Congress That's is what I'm using saying. Muslims Over as this vote time bank period, politics. there has been around 80% of literacy Vote rate bank की amongst तरह the इस्तेमाल कर रहे हैं, Muslims. Much more needs to सत्ता be के सुख पाने के done. लिए। Once this is achieved, Okay, there can be introduction of uniform civil code. Okay, I'm going to leave the final word to a lady. Subuhi Khan, is there any hope that politics will allow such a bill to be brought in, the UCC to be formalized? Or is this going to be left in the realm of abhi conditions तैयार नहीं है after 2024 election? Padmja, I have full hope. मुझे किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी पे इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे भारत की नेशनल एथॉस पे भरोसा है। मैं एक सवाल पूरे भारतवासियों के लिए छोड़ के जाना चाहती हूँ। इस नोट पे हम इस डिबेट को एंड करना चाहेंगे। शुड वी अलाउ पीडोफिलिया? शुड वी अलाउ रेप्स ऑफ माइनर गर्ल्स इन द नेम ऑफ personal laws? This reason should be one single good enough reason why we need uniform civil code or Indian civil code in India. Bang on target. All right, I'm going to leave it at that. We leave it to your wisdom. The idea was just to put the facts on the table. Thanks very much for joining us on the National Debate.